Okay, students, hello students of class 11. We are in chapter 12. 12 है, 14 है. We are in chapter 14. NCERT book. The name of the chapter is Respiration in Plants. Basically, we are seeing the cellular respiration pathway in this chapter. We have seen those pathways of the cellular respiration, glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, and oxidative phosphorylation in a successive manner. So the next topic in your book is amphibolic pathway. We are towards the end of this chapter. The topic is amphibolic pathways. Basically, इसका मतलब ये है, amphibolic means whether the pathway will be considered as anabolic or catabolic. Okay. For example, you have seen that oxidation of glucose is, this is catabolic pathway. And the pyruvate to acetyl coenzyme A is also, this is also catabolic pathway. ये पूरा catabolic है. Catabolic है सब. Acetyl coenzyme A is entering the Krebs cycle. This is also catabolic. So see, this acetyl coenzyme A and this pyruvate, हम बताए थे पाथवे का ये सब बड़ा बड़ा चौक है, चौराहा है. And some of the substrates of the Krebs cycle also, they can be metabolized in a different way also. Like acetyl coenzyme A can be used to synthesize a long chain fatty acid, as it is had 2 carbon. Coenzyme A के sulfur atom से this carbon chain is attached. So many such acetyl coenzyme A can join and form a long carbon chain fatty acids. Okay. So suppose some fatty acid is required in your body. Fat synthesis is taking place in your body. How is it taking place? Suppose the person is not taking the fat in his diet, then the glucose molecule will be oxidized in this way. Glucose will be broken down to pyruvate to acetyl coenzyme A, and many acetyl coenzyme A will condense and form a long chain fatty acid, long carbon chain fatty acid. It can form. So what will you say about this pathway, synthesis of fatty acid? Is this catabolic or anabolic? Till this part, it is catabolic in nature, as the breakdown of glucose is taking place. And from here and onwards, it is anabolic. Okay? Similarly, proteins will be degraded into amino acids. And the amino acids can also be utilized for the energy production or the amino acid synthesis. We will see later in this chapter how it is taking place. So amino acid, I have already told you, many amino acids can be synthesized using pyruvate. For example, alanine. So this is catabolic as well as anabolic. Alanine can be converted into pyruvate, and the pyruvate can be converted into glucose. Although pyruvate से phosphoryl pyruvate is one direction pathway, but other for that enzyme pyruvate kinase के लिए वो unidirectional, लेकिन दूसरा enzyme pyruvate से
फॉस्फोइनोपाइरुवेट में बदल दे सकता है. So like this it can be used. Okay. Suppose the person is taking proteinaceous diet. And for the cell division, ribose sugar is required in large quantity. And the person is not taking glucose. Is not taking carbohydrate rich diet. Body बनाने वाले करते हैं, जिम जाते हैं. Less carb. What will happen? Proteinaceous diet पर the protein will be degraded into amino acids. Amino acids will be used to synthesize pyruvate. Pyruvate से glucose 6-phosphate, and the glucose 6-phosphate से pentose phosphate pathway से ribose sugar बन गया without the intake of carbohydrate. So what will you say about this pathway? Catabolic or anabolic? Both part of this pathway is anabolic and some part of this pathway is catabolic in nature. Like this is anabolic, this is catabolic, and from glucose 6-phosphate से pentose phosphate pathway catabolic. तो इसका मतलब यही है, अब समझ गए मोटा मोटी what is embryonic pathway. Okay, see what is written in your book. Glucose is the favored substrate for respiration. Respiratory substrates are glucose and free fatty acids. Okay. Sometimes amino acids. फ्री फैटी एसिड्स किससे टूट के अलग हुआ? ग्लिसरॉल से. ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड बना हुआ था, फैट जो था ग्लिसरॉल. All this substrate can lead to the energy production, but mostly these two substrates, glucose and free fatty acids, are utilized for the energy production. We have seen the breakdown of glucose, but we have not seen the breakdown of free fatty acids, how it is converted into ATPs, how it is contributing for the ATP synthesis. We have not seen. Okay. So this pathway is little bit for us a complex. Some overview आपको देंगे. For medical entrance point of view, you should know this pathway also. For your +2 syllabus point of view, the exam +2, this is not required for you to learn. Okay. See, book में क्या लिखा है? All carbohydrates are usually converted into glucose before they are used for respiration. We have seen carbohydrates. Many types of carbohydrates are there. Monosaccharides हैं, oligosaccharides हैं, and polysaccharides. Oligosaccharides and polysaccharides can break down into their constituent monomeric units. Yes or no? Yes. So those monomeric units are interchangeable through enzymatic action, and all of those will be converted into glucose. Correct? Other substrates can also be respired. Free fatty acids, amino acids, and glycerol. अभी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पायर हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, इसका भी ब्रेकडाउन हो सकता है. यहाँ रेस्पिरेशन से मतलब है ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन. So other substrates can also be respired, as has been mentioned earlier, but they
but then they do not enter the respiratory pathway at the first stage. ये सब भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं, होते हैं, फ्री फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल, बट दे डू नॉट एंटर एट द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप का मतलब ये जो ऑक्सीडेटिव पाथवे है जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप carried by the hexokinase enzyme. So they do not enter in the first stage, means free fatty acid do not convert into glucose directly and then glucose enter into this pathway. No. Or amino acid into glucose directly. No. They will enter somewhere in this pathway. They will take the shortcut. Okay? See. Figure 12.6. See figure 12.6. देखिए figure. To see the points of entry of different substrates in the respiratory pathway. Figure 12.6. See? है figure? निकाले figure? So like this simple sugar, glucose हो, इसीलिए simple sugar बोल रहे हैं, glucose 6 phosphate. What it is saying is converted into fructose 1,6 bisphosphate. ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का स्टेप्स है. फिर ट्रायो सुगर जो था दोनों डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 phosphate. Okay. Glyceraldehyde 3 phosphate is converted into pyruvate. Pyruvate से एसिटाइल कोएंजाइम ए okay. This acetyl coenzyme A is entering the PCA cycle. ये तो आपने पढ़ा था, सीधा समझ गए. Now, where these things will get incorporated in this pathway, like free fatty acid and amino acids. See, glycerol और free fatty acid, फैट के टू ट्राइग्लिसराइड के टूटने से फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बने अलग अलग हुए. ग्लिसरॉल, as this is a 3 carbon compound, by the enzymatic action, glycerol can be converted into pyruvate. Okay. So now glycerol has entered the pathway. ठीक है, इस पाथवे में यहाँ पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया. पायरुवेट का फिर आगे पाथवे में ये ज्वाइन हो जाएंगे ये मॉलिक्यूल्स, एरोबिक पाथवे. अंडरस्टूड? समझी? 3 कार्बन कम. अब ये सारे स्टेप्स हम आपको नहीं बता रहे हैं तो आप और ज्यादा जंबल हो जाओगे. इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो फॉर यू टू लर्न एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट learn this that glycerol can be converted into pyruvate. Okay. What will happen to free fatty acids or the free fatty acids release? Free fatty acids can go, and glycerol can also be, देखो इस pyruvate, देखो आपके बुक में दिया हुआ है glycerol, how this is converted into pyruvate. Glycerol is converted to dihydroxyacetone phosphate first. So this is not an here.
ये भी 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन, और इस प्रकार से ये पाथवे में एंटर हो गया, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर NADH भी दे देगा, काम का चीज है ना। फैटी एसिड्स के साथ क्या होगा? फैटी एसिड कैन बी ब्रोकन डाउन and acetyl group from this fatty acid will be liberated in a stepwise manner. जैसे 16 कार्बन चेन लेंथ है, दो कार्बन ग्रुप एसिटाइल निकल गया, अब 14 बचा, फिर 2 निकल गए 14, 12 बचे, फिर 2 निकल गए 10 बचा। इस तरह से इन स्टेप वाइज मैनर दो दो कार्बन यूनिट, जहां भी हम बोले कार्बन स्केलेटन ट्रांसफर होता है, कोई एंजाइम में लगता है उस एंजाइम के वर्क करने, हर बार दो दो करके उसको निकाल लिया गया जाता है फैटी एसिड्स को, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन, एंड दिस हैपेंस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल छूट गया साइटोप्लाज्म में, ये ब्रेक डाउन फैट का साइटोप्लाज्म में हुआ into free fatty acids and glycerol. फिर free fatty acids will be transported to the mitochondria after the activation of free fatty acids. There are several steps in this beta oxidation process. Okay. So पहले इसको free fatty acids को activate करता है सिर्फ, शॉर्ट में हम बता देते हैं how they do it. Here I will enlarge this step. फैटी एसिड के साथ कोई एंजाइम ए जुड़ेगा, पहले फैटी एसिड प्लस वो एंजाइम ए, और इस फैटी एसिड में मान लो कितना भी कार्बन, फ्री फैटी एसिड साइटोप्लाज्म में हो रहा है, कितना भी कार्बन हो, इसलिए उसका एक कॉमन टर्म है एसाइल, एसिटाइल नहीं, एसाइल। एसाइल मीन्स 4 हो सकता है कार्बन, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, उसके लिए कॉमन टर्म एसाइल। तो दिस इज कन्वर्टेड इनटू एसाइल coenzyme A, and in this process is carried by an enzyme, the name is thiolase. thiolase नहीं, thiolase, अच्छा इसका दूसरा नाम thiolase। and in this process 1 ATP is consumed. एक्चुअली 2 ATP कंज्यूम हो रहा है, कैसे? 1 ATP is converted into AMP plus pyrophosphate, 2 फॉस्फेट ग्रुप अलग होगा, so therefore 2 ATPs are consumed. इस AMP से ADP बना, एक ATP कंज्यूम होगा, फिर ADP से ATP बना, दूसरा ATP. Now this fatty acid is activated, acylated with coenzyme A. This coenzyme A is acyl coenzyme A से ट्रांस डेल्टा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रांस डेल्टा डबल बॉन्ड इनोआइल कोएंजाइम ए बदला। Okay, and in this process 1 FAD is reduced to FADH2,
This FADH2 will be utilized in the electron transport chain. Then, so this is basically oxidation process. After that, hydration takes place. All these steps are occurring in the mitochondria, because this, after the fatty acid acylation and acyl coenzyme A will come and enter the mitochondria. It will enter the mitochondria. The hydration steps के बाद बीटा हाइड्रोक्सी acyl coenzyme A is the product. हाइड्रेशन स्टेप है, H2O लगा। उसके बाद इसका फिर ऑक्सीडेशन होता है। The product beta hydroxy acyl coenzyme A का, and in this oxidation process, beta ketoacyl coenzyme A is produced. This beta ketoacyl coenzyme A, and in this process, at this oxidation, dehydrogenation also happens. So one NADH is produced from NAD. Beta ketoacyl coenzyme A, then is converted into fatty acyl coenzyme A. And in this reaction, basically this is carried by thiolase enzyme, the same enzyme here. And this fatty acyl coenzyme A will be again subjected for the oxidation. Suppose this acyl coenzyme A, which has entered this cycle of oxidation and hydration reaction, this is having suppose 16 carbon. Then एक चीज हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एक कोएंजाइम ए यहाँ इनपुट है। यहाँ पर 2 कार्बन अलग हो गए, एंड दिस विल बिकम 14 कार्बन लेंथ, चेन लेंथ इस लेंथ carbon scatter is left. And in this cyclic manner, to each cycle, 2 carbon chain is acetyl group is liberated. Okay, like this. And this acetyl coenzyme A, already this is being produced in the mitochondrial matrix. Acetyl coenzyme A will enter the Krebs cycle. So this is oxygen dependent. Acetyl coenzyme A will only be utilized and oxidized when O2 is abundant. O2 is present. Because if O2 नहीं होगा, NAD plus नहीं बनेगा, NAD plus नहीं बनेगा, इसी साइकिल का सबस्ट्रेट है वो एंजाइम का, वो रुक जाएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जमा होने लग जाएगा। समझे क्या हो रहा है? बेसिकली बड़ा फैटी एसिड है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, एंजाइम भूल जाओ, अभी कंफ्यूज करोगे, एंजाइम हटा दो, फिर सबस्ट्रेट पर ध्यान दो। That has been activated by the joining with coenzyme A. This happened in the cytosol with the expense of 1 ATP, which has been converted into AMP and pyrophosphate. Now the acyl coenzyme A, the activated acyl coenzyme A is transported
into mitochondria, and there the oxidation of this compound takes place, resulting into the production of reduced FAD, that is FADH2. Then the intermediate trans delta, स्क्वायर का मतलब डबल बॉन्ड है इस पोजीशन पर, ट्रांस डेल्टा इनोइल कोएंजाइम ए इज प्रोड्यूस्ड, उसका हाइड्रेशन हो गया, देन बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए पूरा अटैच्ड है, ठीक है। जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक अटैच रहेगा, फिर बाद में एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट। कार्बन स्केलेटन जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाएगा तब तक कोएंजाइम में जुड़ा रहेगा, कोएंजाइम में सब में जुड़ा हुआ है। फिर इसका हाइड्रेशन हुआ बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए, ओके। इसके ऑक्सीडेशन से एक NADH प्रोड्यूस हुआ, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए। नाउ दिस कंपाउंड इज रेडी टू गिव, टू स्प्लिट into 2 carbon acetyl group and N-2 carbon chain length acetyl group. So one acetyl, one coenzyme will be again needed. तो ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम में लेके चला गया तो ये कार्बन लेंथ अकेला बच जाएगा, ओके। अगर नहीं एसिटाइल ज्वाइन होगा तो एक कोएंजाइम एक और लगा, तो जो एसिटाइल ग्रुप के साथ कोएंजाइम था वो तो अलग हो गया, और जो रेस्ट बचा उसमें फिर एक कोएंजाइम ए ऐड हो गया, बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए is converted into acetyl coenzyme A and fatty acyl coenzyme A, which is 2 carbon less in number than the original compound. और ये साइकिल चलता रहेगा जब तक ये टूट के पूरा दो दो अलग नहीं हो जाए, सब चलता रहेगा। और इसके रिजल्ट में कितना सारा एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस हो गया और वो सब हो जाएगा यूटिलाइज। Now you have seen how free fatty acid or fat is utilized in the energy giving pathway. Glycerol is utilized like this. It has converted into triose phosphate, and the free fatty acid has gone for beta oxidation. Understood? कोई शॉर्टकट लगाया है? ये डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बन रहा है, आप देखो फैटी एसिड ग्लूकोज नहीं बन रहा है, तो आगे एसिटाइल कोएंजाइम में क्यों इतना फिर वो जर्नी तय करेगा, यानी ग्लूकोज बनने के लिए उसमें और रिड्यूस करना पड़ेगा, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट लगेगा। फैट में कम हाइड्रोजन है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले। अब देखिए हाउ दीज अमाइनो एसिड्स आर यूटिलाइज्ड। इसका क्या फेट है अमाइनो एसिड्स का आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इन योर बॉडी। अंडरस्टूड? पिक्चर देखिए 12.6 कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कैसे यूटिलाइज हो रहा है। पायरुविक एसिड दिखा दिया आपने, अमाइनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, but amino acids can incorporate at many places in this pathway. ठीक है, पायरुवेट पे भी हो रहा है और भी जगह ये इंकॉर्पोरेट हो सकते हैं। तो आपका बहुत सारा जो है अमाइनो एसिड, कई, क्योंकि कुछ अमाइनो एसिड कहे जाते हैं इसी आधार पर आपके ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। Those amino acids, some amino acids can join here also. Here also. Those are called as ketogenic amino acids. You will see. मिटाएं इसको, हाँ समझा कुछ? Why are you blank? बोल नहीं रहे हो तुम लोग, नहीं समझ में आ रहा?
See, amino acids. Some amino acids are glucogenic. ओके, यानी वो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के किसी सबस्ट्रेट में तब्दील होके फिर आगे एनर्जी प्रोडक्शन में जाएगा। जैसे मेजॉरिटी ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड टू पायरुवेट। फॉर एग्जांपल अलानिन, कितना कार्बन है अलानिन में? एक कार्बन अल्फा तो हो गया, एक COH कार्बोक्सिलिक कार्बन, और एक R ग्रुप में मिथाइल ग्रुप। 3 कार्बन का है ये अमाइनो एसिड। सिस्टीन, अगेन 3 कार्बन। ग्लाइसिन, कितना कार्बन है? 2 कार्बन। ओके, इसका इन सारे अमाइनो एसिड्स में अमीन ग्रुप भी है, इसका डी अमीनेशन होता है, अमीन ग्रुप निकाल दिया जाता है, उसके बाद और तब्दीलियां होती हैं। अब डायरेक्ट लिख देते हैं अलानिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन। ओके, और थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। These amino acids can be converted to pyruvate after deamination. फिर वो आगे चला गया। कुछ अमाइनो एसिड्स जो कीटोजेनिक हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। जैसे आपका ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन दोनों है, ग्लूकोजेनिक भी है एंड कीटोजेनिक भी है। थ्रियोनिन, आप इन अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को देखना, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसमें एक एलिफेटिक चेन है ना। एसिटाइल कोएंजाइम के सम अमाइनो एसिड्स, एक इंटरमीडिएट है उसका नाम है एसिटो एसिटेट। These amino acids can directly be converted into acetyl coenzyme and some amino acids are converted into acetyl coenzyme via acetoacetate. These enzymes are these amino acids are ये again यही सब leucine, आइसोल्यूसिन भी हो सकता है कन्वर्ट, फिनाइल एनालिन, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, शायद ट्रिप्टोफैन। Some amino acids like अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये इंटरमीडिएट था क्रेब साइकिल का। CO2 निकलने के बाद 5 कार्बन कंपाउंड वाला पहला CO, दूसरा CO2 जो निकला, तीसरा CO2 निकलने के बाद तो येलो एसिटेट हो गया था।
ओके, सक्सीनेट हो गया था। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का कन्वर्जन है इंटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट एंड अमाइनो एसिड्स। दोज अमाइनो एसिड्स विच आर कन्वर्टेड इंटू अल्फा कीटो ग्लूटारेट आर arginine, glutamate, glutamine, histidine and proline. ओके, तो इन अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस की जब जरूरत पड़ेगी तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से भी बन सकते हैं ये बैकवर्ड रिएक्शन में। और जब ये अमाइनो एसिड की अधिकता होगी ब्लड पूल में, ब्लड में उनका पूल होगा, जब अधिकता होगी तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदल जाएंगे और फिर उनका क्रेब साइकिल में मेटाबोलाइजेशन हो जाएगा। ओके, तो दी अमाइनो एसिड्स आर नॉन एसेंशियल ओन्स, सिंथेसाइज हो सकते हैं। Some enzymes are incorporated at this level, जहां पर सक्सीनाइल को एंजाइम ए बन रहा था क्रेब्स साइकिल, यहां पर मर्ज कर सकते हैं। तो these enzymes are के सक्सीनाइल को एंजाइम ए, आइसोल्यूशन। अब देखिए आइसोल्यूशन कितना तरीका से इनको मेटाबोलाइज हो सकता है। आइसोल्यूशन डायरेक्ट एसिटाइल को एंजाइम में बदल सकता है, एसिटो एसीटेट की तरह बदल सकता है, और आइसोल्यूसिन सक्सिनाइल को एंजाइम ए में भी बदल सकता है। आइसोल्यूसिन, फिर है आपका मैथियोनिन एंड वैलिन। These three amino acids can be utilized in this way, metabolized in, it can merge here at succinyl coenzyme A. Some enzymes, यहाँ पर फ्यूमरेट है और यहाँ पर ऑक्जेलो एसीटेट है, इस पर भी ध्यान दो, फ्यूमरेट लेवल पर। कुछ अमाइनो एसिड्स फ्यूमरेट में बदल सकते हैं, उसके नाम है एस्पार्टेट, स्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। और कुछ एंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट पर बदल सकते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एस्पेरेजिन, एंड एस्पार्टेट। okay, and oxaloacetate can be converted into pyruvate, कल बताए थे। अब आप देखिए एस्पार्टेट हो ऑक्जेलो एसीटेट में बदल सकता है, ऑक्जेलो एसीटेट से पायरुवेट में बदल, और पायरुवेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल सकता है। तो ये क्या हो गया, कोई ऐसा प्रोटीन खा रहा है जिसमें बहुत सारा ये अमाइनो एसिड्स है, इस पाथवे को कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथ।
यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू मॉलिक्यूल्स, अदर मॉलिक्यूल्स। कितना डिफरेंट है एस्पार्टिक एसिड से ग्लूकोज बनना। तो दिस पाथवे एस्पार्टिक एसिड से ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट से फिर पायरुवेट, पायरुवेट से फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस पाथवे विल बी टर्म्ड ग्लूकोनियोजेनेटिक पाथ। अब आप जोड़ लो, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं से है ना? कितना सब इंटरलिंक्ड है। ओके, सो लाइक दिस अमाइनो एसिड्स आर। अब इसमें जो अमाइनो एसिड बच गया, सब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड में देखो कौन छूट गया इसमें, कैन यू नेम इट? अलानिन के घर में टास्क करो, टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा, ये अपना से आपके लिए हम मेंटल टास्क देंगे। आप इस फिगर को करो और हमको कल बताओ कौन सा अमाइनो एसिड इसमें से मिसिंग है। ओके, तो कहने का मतलब हुआ कि आपका सारे पाथवे, अब ये 12.6 फिगर को हमने भी एक्सप्लेन किया है यहाँ पर और एलाबोरेट करके। Now come to this line again. See figure 12.6 to see points of entry of different substrates in the respiratory pathway. अभी निकाल रही हो क्या? अभी देख रही हो ना कौन सा अमाइनो एसिड मिसिंग है? तो देख लो बाद में दिमाग लगा के 20 का लिस्ट बना लेना, इसमें चेकआउट कर कौन सा मिसिंग। जैसे ए से 4 अमाइनो एसिड के नाम अल्फाबेटिकली याद रखना। ए से अलानिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन एंड अलानिन, एस्पार्टिक एसिड, आर्जिनिन एंड एस्पेरेजिन। 4 अमाइनो एसिड ए से, इस तरह याद रखना। बी से कोई अमाइनो एसिड का नाम, सी से सिस्टीन, डी से किसी का नाम, ई से भी किसी का नाम, एफ से किसी का नाम, जी से ग्लाइसिन, ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन। ठीक है, 3 हो गए। एच से हिस्टिडीन, करना बैठ के घर में। तो आगे बढ़ो। So you are seeing here that there is a different points of entry of different substrate, all these respiratory substrates in the respiratory pathway. Fat is needed to be broken down into glycerol and fatty acid. We have seen glycerol would enter the pathway after being converted to PGAL. So glycerol is entering the pathway. It is converting into dihydroxyacetone phosphate, and then dihydroxyacetone phosphate is isomerizing into glyceraldehyde 3 phosphate. पागल जो लिखा हुआ है पगाल, वो इसी का नाम है, glyceraldehyde 3 phosphate. The protein would be degraded by proteases and the individual amino acids after deamination, एक ही लाइन में लिख दिया सर, depending on their structure would enter the pathway at some stage within Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl coenzyme. लाइन पे ही पूरा मतलब, अब ये लाइन को समझाने के लिए इतना आप समझ लीजिए, इससे आप समझ जाओगे। तो प्रोटीन का क्या हुआ? डिग्रेडेशन।
14 अमाइनो एसिड्स में टूट के बिखर गए। ओके, और इंडिविजुअल हर अमाइनो एसिड से अमीन ग्रुप निकाला गया डीअमीनेशन रिएक्शन के द्वारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ बचा। अमाइनो एसिड हैज लॉस्ट इट्स नेचर। अब उस अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी आर ग्रुप में क्या था, डिपेंड करेगा, और फिर उस हिसाब से उसका या तो पायरुविक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा, या एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्जन हो सकता है अमाइनो एसिड का, या क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं उनमें से किसी में कन्वर्जन हो जाएगा। तो तीन तरीका है। आफ्टर डीअमीनेशन amino acid will enter this oxidative pathway in the form of pyruvate either or acetyl coenzyme में और the substrates of the Krebs cycle। तीनों आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, समझे बात को? ओके, तो अमाइनो एसिड जो पायरुवेट में बदल रहे थे आपको एक्सप्लेन किया अभी। कौन कौन सा अमाइनो एसिड था? अलानिन, क्रिस्टीन, ग्लाइसिन, सीरीन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफान। डायरेक्ट पायरुवेट में आ रहा बन। एसिटाइल को एंजाइम में ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान। भले एसिटो एसीटेट बीच लो, वो तो रहा एसिटाइल को एंजाइम में बदल रहा है। और टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स में कौन कौन से एंजाइम खप जा रहे हैं? एस्पेराजिन, एस्पार्टेट, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ग्वालिन, एस्पार्टेट, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। भले नाम हम अलग अलग करके बता दिए, फ्यूमरेट में ये हो गया और सक्सिनाइल को एंजाइम में ये हो गया, और ऑक्जेलो एसीटेट में ये ग्रुप। ओके, सो नाउ यू कैन से कौन सा इसमें कीटोजेनिक है, कौन सा ग्लूकोजेनिक है। तो आप देखिए, ट्रिप्टोफान इज ग्लूकोजेनिक। हम कलर से कर देते हैं, ये हो गया ग्लूकोजेनिक ट्रिप्टोफान, तो पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, अलानिन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन, अलानिन, ये भी ग्लूकोजेनिक है। सीरिन एंड सिस्टीन, सीरिन एंड सिस्टीन, दिस ऑल्सो, ये पूरा ग्रुप हो गया ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। ओके, aspartate and arginine, these are converted into oxaloacetic acid. These two are also called as glucogenic, क्योंकि ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है, इसीलिए इसको भी हम ग्लूकोजेनिक, ये क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट पे मर्ज हो रहे हैं, ये भी है ग्लूकोजेनिक, रेड से जो टिक लगा रहे हैं। okay? और फ्यूमरेट में जो तब्दील हो रहे हैं, जैसे एस्पार्टेट, फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन, दिस इज ऑल्सो ग्लूकोजेनिक। ओके, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट में जो तब्दील हो रहे हैं, आ गया ये स्टार वाला। स्टार कहाँ था? ये यही है ना। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में तब्दील हो रहे हैं आपके हुँ? हाँ ये यहाँ पे, हाँ, आर्जिनिन, आपका हिस्टिडीन, ग्लूटामाइन, ग्लूटामेट एंड प्रोलिन। लाइसिन, बेसिक अमाइनो एसिड है ना, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, एसेंशियल अमाइनो एसिड, बहुत जरूरी अमाइनो एसिड है हिस्टोन प्रोटीन के बनने के लिए, जिसमें डीएनए की पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम, वो नहीं है इस। गुड, यू हैव फाइंड इट आउट। ओके, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये ग्लूटामेट को छोड़ दो, आर्जिनिन, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन एंड प्रोलिन, ये चारों अमाइनो एसिड तब्दील होते हैं ग्लूटामेट।
और ग्लूटामेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, तो ग्लूटामेट तो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो, तब्दील हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट। प्रोलीन कन्वर्ट हो सकता है ग्लूटामेट में, हिस्टीडीन कन्वर्ट हो सकता है ग्लूटामेट में, ग्लूटामाइन कन्वर्ट हो सकता है ग्लूटामेट में, आर्जिनिन कन्वर्ट हो सकता है ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट फिर कन्वर्ट हो सकता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो ग्लूटामेट जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से आया डायरेक्टली अल्फा कीटो ग्लूटारेट में हो जाएगा। ओके। और कुछ एंजाइम्स जो हैं, सॉरी एंजाइम्स बोल रहे हैं आपका, अमाइनो एसिड्स जो कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए लेवल पर मर्ज हो रहे हैं, जो जैसे कि आपका वैलिन, थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड मेथियोनिन, these enzymes, these amino acids। इसमें आप वैलिन जोड़ लीजिए, आइसोल्यूसिन जोड़ लीजिए, एंड थ्रियोनिन का भी होता है। थ्रियोनिन तो पहले ही कर दिए यहाँ पर, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। तो ये तीन बच गया। दिस थ्री अमाइनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। So these three are also glucogenic। समझ गए? क्रेब साइकिल का जो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहा है और ग्लाइकोलाइसिस के जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, या इंटरमीडिएट्स में, जो वो सब ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स। ओके। नाउ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, those amino acids which are joining here acetyl coenzyme A, जैसे थ्रियोनिन, और आपका थ्रियोनिन फिर देखिए कीटोजेनिक भी है और ग्लूकोजेनिक भी है। थ्रियोनिन आपका आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन, these amino acids can be converted into acetoacetate, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइललाइन, ट्राइरोसिन, ट्रिप्टोफैन। ये भी जो एसिटोएसिटेट में बन रहे हैं और एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहे हैं। तो ये सारे जो हैं ये भी कीटोजेनिक है, कीटोजेनिक। these three, एक तो कॉमन ही है दोनों। समझ गए? तो अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन दो तरीके से, तीन तरीके से आप समझ गया। एक तो स्ट्रक्चर के आधार पर, आर वेरिएबल आर ग्रुप के आधार पर, दूसरा हो गया न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट के आधार पर, एसेंशियल नॉन एसेंशियल, और तीसरा अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के आधार पर, वेदर दे आर कीटोजेनिक एंड ग्लूकोजेनिक। ओके, फर्स्ट पैरा इज क्लियर। एम्फीबोलिक पाथवे। So since respiration involves breakdown of the substrates, the respiratory process has traditionally been considered a catabolic process। अब यहाँ पर एम्फीबोलिक पाथवे का क्या मतलब होता है वो समझाया गया है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब है कि ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट होगा। तो इसलिए रेस्पिरेटरी प्रोसेस को शुरुआत से, पुराने टाइम से ही ट्रेडिशनली उनको कंसीडर किया जाता है कैटाबोलिक प्रोसेस के रूप में। इसीलिए रेस्पिरेटरी पाथवे जो है वो कैटाबोलिक पाथ। बट यह अंडरस्टैंडिंग जो है इनकम्प्लीट। अगर आप सिर्फ इसी एक लकीर का फकीर बन के चलोगे तो आप ये सब मिस कर दोगे, है ना? तो बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट, क्वेश्चन मार्क आपके सेंटेंस लाइन को देख। नहीं। वी हैव डिस्कस्ड एबव at which points in the respiratory pathway different substrates would enter। okay? अभी तक हम देख चुके हैं
इन पाथवे के डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट सबस्ट्रेट्स या उन सबस्ट्रेट्स के मेटाबोलाइज प्रोडक्ट्स इंटरमीडिएट्स वो एंटर कर सकते हैं या करते हैं। अगर उनका रेस्पिरेशन होना है, अगर वो एक्सेस में है, if they were to be respired and used to derive energy. What is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrates. ठीक, कहने का मतलब कि जब इन कंपाउंड्स का एक्सेस हो जाएगा तो those substrates can be respired like this different entry points पर। ओके, अलानिन एक्सेस हो गया, पायरुवेट में बदल जाएगा, पायरुवेट से या तो एसिटाइल कोएंजाइम में तब्दील हो जाए या ऑक्जेलो एसीटेट, दोनों तरीका है। अब अगर इनकी सिंथेसिस होनी है तो इसी सबस्ट्रेट से फिर सिंथेसिस भी हो सकती है उन सबस्ट्रेट्स, because these substrates are not only the respiratory substrates, these substrates are the building blocks of the protein also, no? So whenever these energy giving compounds like carbohydrates are in excess, why the protein, why the amino acids will be converted into simpler products which will give you the energy? That time that pathway will be switched off. That will not be, because that is a costly process, because alanine is less readily available to you compared with glucose. Okay, ग्लूकोज का सोर्स तो प्लेंटी है, अलानिन का सोर्स प्लेंटी नहीं है, या अदर अमाइनो एसिड्स। So these amino acids are utilized only during the emergency conditions or situations when the carbohydrate is not in plenty. When in the food, you need the energy for your survival and you are not feeding yourself with the adequate amount of carbohydrate. That time, these amino acids will be utilized as a fuel. And if you are well fed, plenty of carbohydrate is there in your body, then why amino acids will be converted to the energy giving process? No. Okay. So these amino acids will contribute for the anabolic pathway, that is protein synthesis. Okay. So यहाँ पर आप ये समझिए, what is important to recognize that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for the synthesis of the said substrates. Okay. So synthesis of these substrates can be done utilizing these intermediates of the oxidative pathways. बहुत अच्छी बात है आपके लिए, आप ग्लूकोज खाए, अलानिन बन गया। ओके, अलानिन की सिंथेसिस हो गई बिना प्रोटीन डाइजेशन हुए, अच्छी बात है आपके लिए, फायदेमंद। और ये पाथवे स्विच ऑफ हो जाए तो क्या होगा? अलानिन विल बिकम द एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर यू। इट मस्ट बी सप्लाइड इन द फूड फॉर योर सर्वाइवल। E. coli bacteria can synthesize all the amino acids using the carbon chain of the glucose. वरदान है उसको प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं, बैक्टीरिया को, समझे? हालांकि दोगे प्रोटीन तो उस पर भी वो उसको भी मेटाबोलाइज करेगा, लेकिन नहीं भी दिए, मीडियम में सिर्फ ग्लूकोज है, इकोलाई विल यूटिलाइज दैट ग्लूकोज और उसी ग्लूकोज से सब बना लेगा, वो अमाइनो एसिड भी बना लेगा, डीएनए भी बना लेगा। हाँ, नाइट्रोजन सोर्स तो चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स के लिए उसे लगेगा अमाइनो अमीनेशन होने के लिए। हाँ, यस, दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए कहते हैं। डाइजेशन का प्रक्रिया जो है वो स्किप हो गया, डायरेक्ट ग्लूकोज हम ले लिए, ससरा के चला गया पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां एब्जॉर्ब फिर ब्लड में चला गया, उसमें टाइम नहीं लगा।
इसीलिए इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब एक चम्मच घी कोई खाएगा, विल दैट बी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी? नो। पहले तो वो फैट डाइजेशन होगा। फैट का डाइजेशन होना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करना पड़ता है डाइजेस्टिव सिस्टम को फैट को डाइजेस्ट करने। एक बार हम बताए होंगे, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो हमारे वाटर इनसॉल्युबल है और हमारे एंजाइम जो है वाटर सॉल्युबल। तो कैसे उसको डाइजेस्ट करेंगे फैट को? फैट मॉलिक्यूल्स आर देन with the help of bile salt released by the liver, गॉल ब्लैडर निकालता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, those bile salts emulsify that fat, छाग होना। ओके, जब इमल्सिफिकेशन होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीजेस बिकॉज फैट्स एग्जिस्ट एज ए ड्रॉपलेट। बता दे इसको। See, if I give you a simple calculation, सपोज ये एक गेंद है, बॉल, फुटबॉल, थ्री डायमेंशनल है, सर्कल नहीं है, स्फीयर, स्फीयर गोला है। इसका एक रेडियस होगा, और इसका एक कोई निश्चित वॉल्यूम होगा, और इसका एक सरफेस एरिया होगा। सरफेस एरिया मतलब उस बॉल के चारों तरफ कितना एरिया कवर्ड, उसके सरफेस का क्या एरिया है। एक निश्चित आर पर इसका वॉल्यूम निश्चित है। अगर रेडियस आर है तो वॉल्यूम विल बिकम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यही है ना। और सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इफ द सेम वॉल्यूम, इसको हम दो स्फीयर बना दें, surface area will increase, volume remains the same but surface area increases। ठीक है, कैसे? See, you can calculate it। Suppose if you reduce this r into half, ये r/2 हो गया, तो ऐसे कितने स्फीयर्स बन जाएंगे? आप निकाल लीजिए, टोटल वॉल्यूम था, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक, रेडियस जो आधा हुआ, 4/3 इंटू 1/2, 4/3 पाई, इसका क्या वॉल्यूम हो गया? r/2 का क्यूब, बराबर हो गया 4/3 पाई को, ये कॉमन है, इसको मान लो k, तो यहां पर वॉल्यूम हो गया kr3। ओके, द बिगर स्फीयर्स वॉल्यूम एंड द छोटा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई k है, k r3/8 हो गया। अब ये इससे कितना गुना का अंतर है? 8 गुना। ऐसा ऐसा 8 स्फीयर हम जोड़ेंगे। अगर रेडियस आधा हो जाता है तो सेम वॉल्यूम का 8 स्फीयर, सेम वॉल्यूम रेडियस आधा होने के बाद 8 स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेम वॉल्यूम। 8 गुना का अंतर हो गया वॉल्यूम। छोटा स्फीयर और बड़े स्फीयर के वॉल्यूम में 8 गुना का अंतर हो गया, और इस सब छोटे छोटे स्फीयर को हम जोड़ दें 8 को, तब वो जाके बराबर हो जाएगा kr3। ठीक है,
यानी 8 गुना KR³/8। अब सरफेस एरिया पर क्या फर्क पड़ा, R2 हो गया, 4πr² फॉर्मूला है, 4π को मान लो J, तो JR², बड़ा वाला स्फीयर का सरफेस एरिया था। अब छोटा वाले का सरफेस एरिया हो गया फिर 4π J, और R/2 है, R/2 का स्क्वायर, तो इक्वल टू J/4R²। ओके, तो हम इन छोटे छोटे 4 स्फीयर्स को जब जोड़ेंगे, 4 से गुना करेंगे, तब जाके सरफेस एरिया बड़ा होगा बड़े वाले स्फीयर के। लेकिन थे कितने, वॉल्यूम सेम बटा था 8 थे, तो क्या हो गया सरफेस एरिया उन 8 का वॉल्यूम का, J/4R² गुना 8। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल स्फीयर्स। 4 दूनी 8, तो 2JR², तो रेडियस आधा कर दिए, तो डबल हो गई सरफेस एरिया। सब इसी तरह फैट मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स, क्योंकि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, फैट मॉलिक्यूल्स को देखोगे, एक तेल का बूंद डालो, बगल में डालो, दोनों चिप कंबाइन हो जाएगा, बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएगा, फ्लाइट फैट मॉलिक्यूल। तो इन बड़े ड्रॉपलेट जो हम खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, जो भी तेल वेल खा रहे हैं, उन सब बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बाइल सॉल्ट की मदद से इमल्सिफाई किया जाता है। सरफेस एरिया हैज इंक्रीज्ड, नाउ द एंजाइम लाइपेज विल come into the action. Lipase can now digest this fat into simpler substances, and that will be taken by the columnar epithelial cells. And in the columnar epithelial cells, lipoproteins, particularly apolipoproteins, are utilized for the packing of those digested fat droplets. Digested fat molecules will be incorporated in that vesicle which is rich in lipoproteins. So this is how those digested food products after the absorption become soluble in water, and they can now be transported in the blood. ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, जब तक ब्लड में सोल्यूबल नहीं होगा। फैट को बहुत सारे प्रोटीन के साथ बांध के छल्ला बना दिया, वो सोल्यूबल है, उसके साथ फैट भी कैन बी नॉट ट्रांसपोर्टेड। तो ये अलग चैप्टर है। सो कहने का मतलब fatty acids would be broken down into acetyl coenzyme. This we have seen before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fatty acids, acetyl coenzyme could be withdrawn from the respiratory pathway for it. इसका अपोजिट भी हो सकता है, फैटी एसिड की सिंथेसिस होनी है, ओके, तो एसिटाइल कोएंजाइम से फिर फैटी एसिड की सिंथेसिस। ये बात आप ध्यान रखिए कि हम जो फैट ले रहे हैं उसमें भी फैटी एसिड, तो फिर फैटी एसिड के सिंथेसिस की जरूरत क्यों? ओके, सवाल उठता है ना। हम जो फैट खा रहे हैं उसमें फैटी एसिड है ना। फैट जो ले खाते हो तुम लोग, क्या है? ट्राइग्लिसराइड है, स्टीरिफाइड है, भूल गए? ये फैटी एसिड का ब्रेकडाउन हुआ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लिसरॉल अलग, फैटी एसिड अलग। इस फैटी एसिड का
इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन, नहीं पहले इमल्सिफिकेशन ही हो गया। इमल्सिफिकेशन बाय बाइल सॉल्ट्स, ये सेम फॉर्मूला है। कपड़ा से कैसे आप गंदगी निकालते हो जब कपड़ा साफ करते हो, ठीक है? क्योंकि जो गंदगी है कपड़े में, जो मैल बैठा हुआ जो गंदगी है, वह है फैट सोल्यूबल। ओके, क्योंकि क्या है उसमें कार्बन है। ओके, बॉडी का सिक्रीशंस है, वाटर सोल्यूबल भी है, कुछ फैट सोल्यूबल भी। आप सर्फ को पानी में डाले, हाथ हिलाए, झाग उत्पन्न की, वो इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन से सरफेस एरिया, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और कुछ लोग जिनके पास और धनी लोग हैं तो कपड़े को डायरेक्ट पेट्रोल में डुबा देते हैं, ड्राई क्लीनिंग, कोई रगड़ने का जरूरत नहीं, डुबा के रख दिया 5 मिनट, अच्छे से 1-2 बार कर लिया, उठा के पसा दिया, पूरा साफ। ठीक है, तो वो जो है उसमें डिजोल्व हो गया। लॉन्ग कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स था, वो हाइड्रोकार्बन था, उसमें इजिली डिजोल्व हो गया। एक सस्ता तरीका क्या है कि कोई कंपाउंड लिए जो इमल्सिफाई कर सकता है, पानी में घोले, उसमें कपड़ा को डाल के उसमें रगड़ के साफ कर। तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन हुआ बाइल सॉल्ट्स का, फिर उसके बाद लाइपेज आया, इन सबको ब्रेक डाउन किया, फैट जो है। क्या क्वेश्चन था हमारा? हम्म, हाँ, तो देखो, ये ब्लैक, ये ब्रेक डाउन हुआ। बॉडी कितना मेहनत करता है हमारा सिस्टम, पहले फैट को तोड़ेगा, इसको फिर इंटेस्टाइनल के कॉल्यूमनर एपिथेलियल सेल से इसको एब्जॉर्ब करेगा अपने माइक्रोविलाई से। माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, इनको फिर सिंपलर प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करेगा, इसको फिर ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा, पैकेजिंग इनटू लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में। लाइपोप्रोटीन्स 3 तरह के होते हैं, HDL, LDL and VLDL. Okay, this is the high density lipoprotein. In this, the protein part is more in comparison to lipid part. This is low density. The lipid part is more than protein part, and this is very low density. Okay, so this is very dangerous for your health if it is deposited in the blood vessels, and this has tendency to deposit in the blood vessel on the lining, inner lining of the blood vessel, and result into the development of कार्डियोआर्थ्रोस्क्लेरोसिस। ओके, हार्ट डिजीज होता है। तो ये लाइपोप्रोटीन की पैकिंग के मिसमैच से होता है। ओके, खैर छोड़ो, इसमें आप देखिए, फिर फैटी एसिड ये जो ऑब्टेन हुआ, इस फैटी एसिड का ब्रेकडाउन इन अस। ओके, and then it will be converted into acetyl coenzyme A, and that acetyl coenzyme A will be utilized for the energy, will go in energy pathway, oxidative pathway. तो जितने भी फैटी एसिड है सबका ब्रेकडाउन हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, वो भी हम ग्रहण कर रहे हैं बात। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम में से नया फैटी एसिड सिंथेसिस हो रहा है, जिसको हम बना रहे हैं, हमारा बॉडी बना रहा है। हम आप हमारे अंदर जो फैट है, this fat has come from the breakdown of the fat that we have taken in the diet. उस फैट के ब्रेकडाउन से फिर एसिटाइल को ब्रेकडाउन, then absorption, then fatty acid delivery in the cell, then fatty acid delivery का beta oxidation in the mitochondria. From there acetyl coenzyme got produced, large amounts of acetyl coenzyme. जैसे समझ लो पुराना मकान तोड़ के सब ईटा उसका निकाल लिए और उसी पुराने ईटे से फिर एक नया स्ट्रक्चर तैयार कर, यानी इस फैटी एसिड जैसे प्रोटीन का हो रहा है,
हम जो डाइट में प्रोटीन ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करके सब अमाइनो एसिड निकल गया, और उस अमाइनो एसिड से फिर एक नया प्रोटीन हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमने बनाया हमारे सेल। Similarly, fatty acid is broken down into individual components, and those individual components are further oxidized, and it is liberated as two carbon unit form, like called as acetyl coenzyme A, and that acetyl coenzyme will, depending upon the dietary status of that person, बहुत ज्यादा ग्लूकोज वो खा ही रहा है पहले से, कार्बोहाइड्रेट वेल बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में जो फैट से आया वो एक्सेस हो गया। Those excess acetyl coenzyme A will be utilized for the synthesis of new fatty acid molecule. Okay, that's why the animal to animal the fatty acids are different. Okay, some animal produces that fatty acid, some animal produces this fatty acid. तो जो फैटी एसिड आपने बना वो फैट के ब्रेकडाउन के बाद एसिटाइल कोएंजाइम में फिर फैट का सिंथेसिस हुआ, नया फैट वो है। ओके, दिस आई वांट टू से। ऐसा नहीं है कि ये फैट यहां से बच गया, अब ये डायरेक्टली स्टोर हो गया टिश्यू, इसका ब्रेकडाउन हो फिर नया फैट सिंथेसाइज। So hence fatty acid would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But and when it is in excess, then the fatty acid synthesis will take place. इसलिए आदमी ज्यादा खाना खाता है तो मोटाता है, चर्बी जमा होती है। कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा खाएगा तो भी मोटाएगा, खाएगा ना। मान लो फैट नहीं ले रहा है, खा रहा है, तो खाली कार्बोहाइड्रेट खा रहा है, क्या होगा? उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट से जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होना था हुआ पूरा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जितना ग्लाइकोजन बनना था उतना बना, तो उसका भी सीमा है, ग्लाइकोजन एक सीमा से ज्यादा सिंथेसाइज नहीं हो सकता। 2% का सेल के ड्राई वेट से ज्यादा ग्लाइकोजन नहीं हो सकता, तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज था वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट है। अब यहाँ आगे का पाथवे में कम यूटिलाइज हो रहा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, वेल फेड है वो, तो जो एक्स्ट्रा एसिटाइल कोएंजाइम ए है that will be utilized for the synthesis of fatty acid, फैट बन जाएगा। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से आदमी नहीं मोटा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डिपॉजिटेड beneath the skin, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं वो सेल के अंदर है, और फैट भी सेल के अंदर है, इन द एडिपोसाइट्स प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू, जो फैट को स्टोर करते हैं इन अ बिग वेसिकल। ओके, तो चाहे अमाइनो एसिड खूब ज्यादा खा रहा हो, कार्बोहाइड्रेट खूब ज्यादा, वो मोटाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है और वहां से फिर फैट बनता है, सिंथेसिस ऑफ फैट। फैट खाएगा तो ऑब्वियसली वहां से फिर एसिटाइल, तो वो भी मोटाएगा, चर्बी जमा होगी। समझ रहे बात को? So hence fatty acid will be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme would be withdrawn from the respiratory pathway for it. Hence the coenzyme would be hence the respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. तो ये रेस्पिरेटरी पाथवे फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी और फैटी एसिड के ब्रेकडाउन दोनों में यूटिलाइज हो रहा है। विच पाथवे? द रेस्पिरेटरी पाथवे, फैटी एसिड के ब्रेकडाउन में भी और फैटी एसिड के सिंथेसिस में भी। तो सिमिलरली ड्यूरिंग ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन 2, प्रोटीन में भी सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड एंड ब्रेकडाउन ऑफ अमाइनो एसिड में भी ये रेस्पिरेटरी पाथवे यूटिलाइज हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट्स फॉर्म द लिंक, breakdown processes within the living organisms is catabolism, as you know, and the synthesis is anabolism, you already know. So
Because because this respiratory pathway is involved in both. Now you are seeing it. This respiratory pathway is involved in both anabolic and catabolic processes. Anabolic process, synthesis of amino acid, synthesis of fatty acids. Synthesis of fatty acids from acetyl coenzyme A, synthesis of amino acids from either pyruvate or glycerol 3-phosphate or alpha ketoglutarate or succinyl coenzyme A or oxaloacetic acid. This Krebs cycle intermediate amino acid synthesis is taking place. And the reverse direction of this is the breakdown of amino acid. So this respiratory pathway is now you are seeing that it is utilized in 3 ways. Number 1, the breakdown of glucose, oxidative breakdown of glucose to yield energy. Yeah, oxidative breakdown of glucose for the synthesis of ATP. Number 1, जो central theme है इस pathway का, तो major काम, the synthesis of ATP. Okay, जैसे मोबाइल आता है उसके साथ एसेसरीज आता है, चार्जर है, ईयर प्लग है ना, तो ये मोबाइल हो गया, एसेसरीज. This pathway, this central respiratory oxidative pathway is also utilized for the synthesis of the second way, the synthesis of amino acids. The third way, the synthesis of fatty acids. And this respiratory pathway is also utilized for the breakdown of amino acids, the fourth way, and the breakdown of fatty acids, the fifth way, that is beta oxidation, breakdown of fatty acid pathway. That pathway is called as beta oxidation. Okay, because that beta bond is getting broken. अब देखिए हमेशा एसिटाइल ग्रुप निकल रहा है. The beta bond is getting broke. Synthesis of amino acid is amination of these substrates. इस substrate का amination हो गया तो amino acids पर. Deamination हो गया amino acids का, so now amino acids can be turned into pyruvate, oxaloacetic acid, alpha ketoglutarate, succinyl coenzyme A, or acetoacetate or acetyl coenzyme. Like this can be converted. समझ रहे हो बात को? 5-6 तरीका से ये सेंट्रल पाथवे में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स भी इसमें मर्ज हो रहे हैं. समझ गए? So because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, it would be hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway. Therefore, this respiratory pathway is called as amphibolic pathway. I think you have got this point, amphibolic pathway, how it is, what is it? ठीक है, the respiratory pathway is amphibolic pathway. अगर क्वेश्चन है how and why, then you will explain how it is amphibolic pathway. So amphibolic pathways यानी respiratory oxidative respiratory pathway ही, कहीं पर ये ऑक्सीडेटिव है, कहीं ऑक्सीडेटिव नहीं. तो यह रेस्पिरेटरी पाथवे is called amphibolic pathway. Why amphibolic pathway? Why? Because in this pathway is doing both catabolism and involved in both catabolism and anabolism. इसमें catabolism catabolic है, oxidative breakdown of glucose is catabolic. Okay, glucose respiratory substrate का
amination of amino acids to produce क्या क्या पगाल या पायरुवेट या intermediates of Krebs cycle. Krebs cycle किसका देखे थे इंटरमीडिएट किस कौन कौन था वो इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए और अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्जेलोएसिटिक एसिड पायरुविक एसिड का तो नाम पहले लिखिए ये इंटरमीडिएट ऑफ क्रेब्स साइकिल बता रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए अल्फा कीटोग्लूटारेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए ये अमाइनो एसिड के डीअमीनेशन से बन रहे हैं टू प्रोड्यूस these intermediates and these intermediates then entering the respiratory pathway to yield the energy. So this is catabolic in nature. Third, beta oxidation of free fatty acid. This as a result of which what you are getting is the number of acetyl coenzyme A compounds. बहुत सारे acetyl coenzyme A मिला and this acetyl coenzyme A can enter the respiratory pathway. Catabolic हो गया. Anabolic in nature. How? Number one, gluconeogenesis pathway. Gluconeogenetic pathway. That is from amino acids से glucose 6 phosphate. Amination of amino acids resulting into the production of amination of these products पगाल पायरुवेट और ये इंटरमीडिएट्स ऑफ द क्रेब्स साइकिल इसका उल्टा यहाँ डीएमिनेशन हुआ इसका उल्टा अमीनेशन ऑफ पायरुवेट पगाल and intermediates of Krebs cycle leading into the production of amino acid, that is the synthesis of amino acids. फिर बीटा ऑक्सीडेशन तो ये हो गया synthesis of fatty acids. This is anabolic again. Synthesis of fatty acids
from accumulated and access acetyl coenzyme A. Yes, you know, fatty acid from acetyl coenzyme A. So these are anabolic, these are catabolic. That's why the respiratory pathways are that's why it is important to mention respiratory pathway as amphiboolic pathway. Understood? The next topic in your book is respiratory quotient. कुछ नहीं है ये, आप समझ लो कि ज्यादा मुश्किल नहीं है. What is it? Respiratory quotient. यानी this is the measurement of the respiration. Quotient का मतलब होता है पैमाना. जैसे आपने सुना होगा IQ. सुना है IQ? क्या मतलब है? इंटेलिजेंट क्वोशेंट यानी इंटेलिजेंसिया नापने का पैमाना. एक है EQ, इमोशनल क्वोशेंट, यानी कौन आदमी कितना इमोशनल होता है उसका पैमाना. जिसका EQ ज्यादा है बातें बात पर कानेगा, और जिसका IQ ज्यादा है दिमाग चलाएगा, जीनियस. तो ये सब बैलेंस होना चाहिए. EQ भी बैलेंस होना चाहिए. अगर इमोशन नहीं होगा तो आदमी के निष्ठुर हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा. पत्थर अगर जीरो है तो, अब खूब है तो पपत पपत कानेगा, तनी तनी की बात पर दूसरेगा टिपेगा, जैसे बच्चा का होता है. ओके. आपके बुक में है रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, यानी रेस्पिरेशन को मापने का पैमाना. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. तो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट का फॉर्मूला है, यानी कितना CO2 आपने लिबरेट किया और कितना कंज्यूम किया, इसका रेशियो. RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 liberated या रिलीज या इवॉल्व एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम. अब इसमें हम यह पाते हैं देखने में, जैसे सिनेरियो 1, if glucose is utilized for the if only glucose is the respiratory substrate, only glucose is utilized for the synthesis of ATP, then this respiratory quotient is equal to 1. Okay? यानी जितना CO2 रिलीज हुआ, जितना वॉल्यूम ऑफ O2 इंटरनलाइज हुआ,
उतना ही CO2 वॉल्यूम रिलीज हो। यानी ये सारे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये वाटर में तब्दील है। और पर molecular oxygen molecule, one CO2 is released. One molecule of CO2 is released. But यहाँ समझने की भूल मत करना कि ये this O2 has incorporated like this in the CO2. No. For every molecule of molecular oxygen consumed, one molecule of CO2 is produced from the breakdown of the respiratory substrate. Okay? This means that. So in the case of carbohydrates, the respiratory quotient is 1. But if carbohydrate case, but if fat is utilized for the synthesis of ATP, then the respiratory quotient is less than 1. Even for the proteins, fat के case में, the protein के case में, the respiratory quotient is again less than 1. Okay? So you can say that if these two molecules, protein and fat, if it is less than 1, then the numerator is lesser than the denominator. Denominator is greater than the numerator. That means O2 is consumed more for the same amount of the CO2 which is released. More O2 is consumed. In the case of fat and proteins. तो फैट और प्रोटीन के डाइजेशन पे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप आराम से समझ सकते हैं क्यों ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो फैट और प्रोटीन तो एसिटाइल एंजाइम के थ्रू सोलली डिपेंडेंट है ऑक्सीजन पर। इसमें कहीं एनारोबिक पार्ट नहीं है। फैट और प्रोटीन के कैटाबोलिज्म में, के ऑक्सीडेशन में, फैट और प्रोटीन के ऑक्सीडेशन में कहीं भी एनारोबिक पार्ट नहीं। इट इज सोलली डिपेंडेंट ऑन O2। अगर O2 कम हो जाएगा तो आगे NAD+ कम हो जाएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम में एक्यूमुलेट हो आगे फर्दर प्रोसेस। लेकिन ग्लूकोज के साथ ऐसा नहीं, इसमें एनारोबिक पार्ट भी है। इफ O2 इज लेस देन आल्सो द उसके बाद भी ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म हो सकता है, हो रहा है फिर भी। अब उसका एक बाईपास है फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो फिर NAD+ जनरेट हो जाता है और वो ग्लाइकोलाइटिक साइकिल चलते रह सकता है। दैट्स व्हाई इट्स रेस्पिरेटरी quotient is more for glucose. It is requiring the same amount of O2 for the same amount of CO2 generated. But in proteins, fats, the same amount of O2, the amount of O2 which is consumed will give less amount of CO2 being produced. So let us now look at another aspect of respiration. आप quickly जा सकते हैं. Respiration, as you know, during aerobic respiration, O2 is consumed and CO2 is released. The ratio of the volume of CO2 involved to the volume of O2 consumed in respiration is called respiratory quotient or respiratory ratio. The respiratory quotient depends upon the type of respiratory substrate used during respiration. Understood? Okay. So when carbohydrates are used as substrate and are completely oxidized, the RQ will be 1. Carbohydrate के case में RQ will be 1. Because equal amounts of CO2 and O2 are involved and consumed, respectively, as shown in the equation below. ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जितना CO2 निकला, जितना O2 कंज्यूम हुआ, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं। उतना ही मॉलिक्यूल CO2 का इक्वेशन बैलेंस करने के बाद
उतने ही मॉलिक्यूल CO2 के लिबरेट हुए, C6H12 12O6 plus oxygen is giving rise to CO2 and H2O plus energy. बैलेंस कीजिए, 6 कार्बन, 6 दूनी 12, 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ 12 है, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18 बैलेंस्ड। तो रेस्पिरेटरी अगर इक्वेशन दिया रहेगा आपको और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालने कहा जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेशियो और रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज इक्वल टू the volume of CO2 divided by the volume of CO2, 6 CO2 divided by 6 O2 1. When carbohydrate is respired. When fats are used in the respiration, respiratory quotient is less. Suppose fat is respired. Okay. Suppose palmitic acid. Palmitic acid. कितना कार्बन है इसमें? 16 कार्बन, C60. आपके बुक में एक दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ट्रिपाल मिटीन। इसमें कितना है कार्बन? 51 कार्बन, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। हम 16 वाला कार्बन लेके चलते। तो फैट में कौन कौन से एटम है? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, और कुछ भी है, सल्फर फास्फोरस ये सब तो नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, यही 3। इसमें है 16 कार्बन। ऑक्सीजन कितना होगा? 16 कार्बन। अगर इसको देखा, इसका स्ट्रक्चर बना के निकाल लो। ये सब एक्सरसाइज खुद से किया करो, मेंटल दिमाग का एक्सरसाइज है। सब देखो निकाल लेते हैं। पामिटिक एसिड C16 है ना, CH3 पहला कार्बन, CH2 14 बार, और उसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। ठीक, यही था ना फैटी एसिड। अब कितना हो गया? C16 एक, 14 एक 15, एक 16। हाइड्रोजन देखिए, 14 दूनी 28, 28 3 31 और 1 32। 16 दूनी 32 हो गया, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 4 32, 16 दूनी 32। और ऑक्सीजन हो गया सिर्फ 2, है कि नहीं? थोड़ा गूगल भी कर लो, देखो पामिटिक एसिड का निकालो फॉर्मूला, सीधा केमिकल फॉर्मूला पामिटिक एसिड, ठीक है कि नहीं? ला, कितना हाइड्रोजन है पामिटिक एसिड में? केमिकल फॉर्मूला नहीं निकाल पा रहे हो, क्या रहा?
अरे ये तो हो गया पूरा वो, कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन। केमिकल फार्मूला ऑफ पामिटिक एसिड। केमिकल फार्मूला ऑफ पामिटिक एसिड। यही है ना। ओके। This will be broken down into CO2 and water plus energy। अब बैलेंस कीजिए इक्वेशन। 16 कार्बन, 16 कार्बन, इस 16 कार्बन करने के चक्कर में 16 दूनी 32 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो 16 CO2, O2 सॉरी। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देखिए 32, और यहाँ H2O है तो इसको भी 16 करना पड़ेगा, 16 H2O। लेकिन अब फिर ऑक्सीजन बढ़ गया, 16 दूनी 32 और 16 48, 48 हो गया। तो इसमें हम 8 और जोड़ देंगे, O2, यानी 24 O2 हो गया। अब बैलेंस हो जाएगा, हुआ बैलेंस 24O2। नहीं, यहाँ भी तो O2 है। नहीं, अभी होगा, उसको और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। नहीं, 24 दूनी 48 हो गया, और 16 दूनी 32, और 16 48, दो और है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। O2 2C16H12O2। अब 16 दूनी 32, तो 16 CO2 और जोड़ दिए, और 32 दूनी 64, 16 H2O और जोड़ दिए, अब कितना हो गया ऑक्सीजन, 16 दूनी 32 और 16, 16 दूनी 32, नहीं अब कितना हो गया, ये डबल हो गया, 16 दूनी 32 और 64 ऑक्सीजन। इसको एक लिख लो, यानी 32 CO2 32 H2O, 32 CO2 और 32 H2O। अब देखिए ऑक्सीजन 4, और 24 दूनी 48, 4 52, 52 ऑक्सीजन इधर है, और इधर 32 दूनी 64, बहुत बढ़ाना पड़ेगा इसको। गुना कर दो, बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है।
फिर से चलो। दो, दो चार ऑक्सीजन, यहाँ दो, एक तीन ऑक्सीजन, दो एक तीन, दो दो चार, दो एक तीन, चार तिया 12। यानी अगर हम 12 कर दें, इसको देख लो, गूगल कर लो इसको बैलेंस पहले बैलेंस करो इक्वेशन तब। नेट रिएक्शन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पामिटिक एसिड। कितना 20, ये कितना बोली? 23। 16H2O और CO2 16। अब कितना होगा? 23 दूनी 46, 2 48। हाँ ठीक बोलिए, अब बैलेंस हो गया 48। और ये 16 दूनी, अब देखो शुरू से करो बैलेंस। कार्बन 16, 16 कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 32, 32 बैलेंस है। ऑक्सीजन 23 दू 46 और 16 दूनी 32। कहाँ बैलेंस? अच्छा, 23 दूनी 46, 2 48। और ये हो गया 16 दूनी 32 और 16 48। हाँ अब बैलेंस्ड। ठीक। आर क्यू क्या हो गया? 16 CO2 डिवाइडेड बाय 23O2। हाँ 1 से कम हो जाएगा। 23 को भागा दिए 16 से, 160। 23.7, 23 7 दूनी 14, 7 7 दूनी 14, 23 168 से होता है ना। 7 दूनी 14 140 और 7 21, लगभग 0.7 आ जाएगा। 0.7। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन you are seeing here less than 1. So when fats are used for the respiration, the respiratory quotient is less than 1. Right? So when proteins are, or similarly when proteins are respiratory substrates, the ratio would be about 0.9 proteins. What is important to recognize is that in living organisms, respiratory substrates are often more than one. Pure proteins or fats are never used as respiratory substrates. If the, क्योंकि इसका respiratory quotient कम है, the proteins or fats are never used for the respiration purpose, for the production of the synthesis of ATP if carbohydrate is present. कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस में प्रोटीन और फैट कभी यूटिलाइज नहीं होगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। समझ रहे हो बात को? इसलिए जो लोग डाइटिंग करके अपना फैट कम करना चाहते हैं, उनके साथ ये दिक्कत हो जाती है। भले फूड कम कर दिया उन्होंने, तो ग्लाइकोजन स्टोर विल गेट डिप्लीटेड फर्स्ट, वो फर्स्ट चॉइस होगा। उसके बाद सेकेंड चॉइस बनेगा अमाइनो एसिड, इसका ज्यादा है। अमाइनो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू द will be utilized for the synthesis of ATP. Result क्या होगा? Protein synthesis will get affected. Protein synthesis उस पर्सन में कम हो जाएगा, फैट फिर भी बचा रहेगा।
चर्बी कम नहीं होगी, प्रोटीन कम हो जाएगा उसके बॉडी में। ओके, प्रोटीन कम हो जाएगा, प्रोटीन कम हो जाएगा, देन वाटर विल गेट accumulated इन द टिश्यूज। कोई पर्सन थुल थुल पनियाहा जैसा लगेगा, प्रोटीन कम है उसमें, डाइटिंग पर रहा हुआ है अपने मोटापे को कम करने के लिए, तो वो तरीका सही नहीं है। समझे बात को? चलो, इसमें अब ये चैप्टर खत्म हो गया है। कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 12, टेल मी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन? व्हाई? क्या इसका महत्व है, स्टेप वाइज रिलीज हो रहा है एनर्जी? व्हाई इट इज मल्टी स्टेप प्रोसेस? बता चुके हैं ना कई बार। If that fuel is burnt in your body in a one-step process, large amount of heat will be produced, and that heat cannot be trapped. One-step process, just like the combustion process, you cannot utilize the whole of that energy. Okay, so the energy is harvested in our body in a stepwise manner. The difference of free energy between products and the reactants is utilized for, is conserved, is utilized for the reduction of NAD plus. Either NAD plus का reduction होगा, the free energy which is liberated in each successive step, or direct phosphorylation of ADP. So it is not a single step process. पूरा समझा के लिखोगे इसमें, कितनी बार बता चुके हैं, 4-5 बार हम डिस्कस करते हैं। Same question. What is the importance of stepwise release of energy in the respiration? If it is not a stepwise, energy cannot be harvested and stored in the form of ATP. It will be one step process, and the energy will be dissipated and lost in the environment, and that will not be suitable for the living system. In engines, one step process is there. In engines or combustion engines, if you are burning any fuel. What is oxidative phosphorylation? Direct question है, कर लो, define RQ. What is its value for fats? Okay, discuss the respiratory pathway is an amphibolic pathway. पूरा 2 घंटा डिस्कस किए हैं अभी. Okay, what are the assumptions made during the calculation of net gain of ATP? क्या क्या assumptions है net gain of ATP का? ग्लूकोज से जो ATP हम पूरा निकाल रहे हैं, क्या assumptions किए कि एक ग्लूकोज जो है, क्या क्या मान के चले कि एक ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, उसके इंटरमीडिएट्स कहीं दूसरे जगह नहीं गए, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम है यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, या पायरुवेट अलानिन में बदल सकता है, या अल्फा कीटोग्लूटारेट दूसरा अमाइनो एसिड में बदल सकता है। ये सब हम assumption हटा दिए, पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ ग्लूकोज का। ठीक है, तो दैट्स द कंसिडरेशन। पढ़ाया था ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल if completely oxidized, क्या, what are the assumptions made during the calculation of net gain of ATP? तो पूरा क्यों लिखाएगा? assumptions क्या क्या है? एक तो assumptions ये है कि ग्लूकोज इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू द, सबसे पहले assumption बनाओ, ऑक्सीजन इज प्लेंटी, यानी एरोबिक कंडीशन, ये एक कंडीशन होगा ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। द सेकेंड इज इंटरमीडिएट्स
पाथवे के इंटरमीडिएट्स है, दोज इंटरमीडिएट्स आर नॉट चेंजिंग इनटू metabolites which are not part of respiratory pathway. ओके, ये दो मुख्य जंक्शन थे। अब जाओ, बुक में पीछे लिखा हुआ है सब, इसको डिस्कस भी किए हैं 2 दिन पहले हम पूरा। नेट गेन हुआ एटीपी का, पहले आप निकालोगे गेन, यानी टोटल गेन। ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी, ओके, 4 एटीपी बना और 2 एनएडीएच ग्लाइकोलाइसिस में बना था और 8 इधर बना था। क्रेब साइकिल में 10 एनएडीएच प्लस 10 H प्लस 2 FADH2 प्लस 2 GTP, ये टोटल हुआ। इस सबको जोड़ देंगे तो 40 एटीपी आएगा। पहले टोटल गेन हुआ 40 आएगा, इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस का 4 एटीपी हम जो लिखते, 4 एटीपी गेन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। 10 NADH ग्लाइकोलाइसिस में, सॉरी 2 NADH और 8 NADH प्लस H प्लस क्रेब साइकिल से, और 2 FADH2 क्रेब साइकिल से, 2 GTP क्रेब साइकिल से। तो 10 या 30, इसको ऐड किए, 4 प्लस ये 10 या 30 हो गया एटीपी, और 2 दूनी 4 प्लस 2 बराबर 40 एटीपी। अब नेट गेन, इन्वेस्टमेंट था प्रिपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी का माइनस 2 एटीपी, दैट वाज द इन्वेस्टमेंट इन द preparatory phase of glycolysis. Will give it to you 38 ATP. This is the net gain that you will write in the exams. Distinguish between the following aerobic respiration and anaerobic respiration. कर सकते हो आप लोग, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन कर सकते हो, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इफ द एरोबिक पाथवे इज स्टॉप विदाउट फर्मेंटेशन, glycolysis cannot be continued because this fermentation pathway is supplying the NAD plus substrate. The glycolysis and citric acid cycle के बीच में distinguish कीजिए। Yes, you can do it. This is the anaerobic part, this is the aerobic part. Okay. Next is explain electron transport chain. कर चुके हैं। Give the schematic representation of an overall view of the Krebs cycle. कर लोगे। What are the main steps in aerobic respiration? Where does it takes place? ये भी कर लोगे आप। कहाँ हो रहा है एरोबिक पार्ट? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या सीधे माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे, लेकिन जब क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है तब हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है? तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में वो बीच में बैठा हुआ, इधर का चीज इधर उपच रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इधर हो रहा है कि इधर हो रहा है कि बीच में हो रहा है? तो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया में। एरोबिक रेस्पिरेशन इज एसेंशियली हैपनिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो गिव द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। हो जाएगा। व्हाट आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स?
क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिनका ब्रेकडाउन किया जा सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी? दो सबस्ट्रेट्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, whether aerobically or anaerobically. Name the most common respiratory substrate. ग्लूकोज, बस ग्लूकोज, दूसरा कोई नहीं। ग्लूकोज नहीं होगा तब यूटिलाइज होगा अमाइनो एसिड, उसके बाद नंबर आएगा। प्रोटीन का कहा, अमाइनो एसिड बोल तो दिए, प्रोटीन थोड़े डायरेक्ट हो रहा है, प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड बन रहा है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ग्लूकोज का सब, फर्स्ट चॉइस इज ग्लूकोज, नेक्स्ट अमाइनो एसिड एंड देन नेक्स्ट फैटी एसिड। 0.7 जिसका है। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन कंबशन कर लोगे? रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट इज अ मल्टी स्टेप harvesting of energy from the molecule, but the combustion is one step process, and in this one step large amount of energy is released. Okay, glycolysis and Krebs cycle कर लोगे? डिस्टिंग्विश, एक एनारोबिक है एक एरोबिक। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म हो रहा है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस का सबस्ट्रेट जो है वो इनिशियल सबस्ट्रेट ग्लूकोज है, क्रेब्स साइकिल का इनिशियल सबस्ट्रेट एसिटाइल कोएंजाइम है एंड ऑक्जेलो एसीटेट। ओके, और भी बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हो। इसमें चार 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 एनएडीएच प्रोड्यूस होता है। ओके, एक पायरुवेट से, एक एसिटाइल कोएंजाइम से, और उसमें दो होता था, दो पायरुवेट होता था। ओके, इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हो जाता है क्रेब्स साइकिल में, पता है ना? और दो और एक पायरुवेट से 3 मॉलिक्यूल निकल जाता है CO2 का, और 2 ATP बन जाते हैं, और 4 NADH बन जाते हैं, और एक FADH2 बन जाता है। ये मैट्रिक्स में हो रहा है, एरोबिक है, बहुत सारा चीज लिख सकते हो। हो गया? चल, कुछ पूछना है?